This is Biology Chapter 4, Video 2. This video is going to be a little bit longer than the usual videos. We'll be covering the human digestive system entirely. This is a very important topic and the students are advised to cover this topic through other videos as well. The human digestive system, as shown in the figure, is also called the alimentary canal. The digestive system has two parts. The alimentary canal, वो organs जहाँ food actually जाता है digestion के लिए. Second are the digestive glands, वो organs जहाँ food नहीं जाता but वो digestive juices और enzymes create करते हैं जो food की digestion को aid करेंगे. So, the alimentary canal includes the following organs: the mouth or the buccal cavity, the pharynx, esophagus or the food pipe, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. This alimentary canal is almost 9 meters long, coiled food tube, and it is open at both ends. First end is the mouth and the second end is the anus. Next, the digestive glands. The salivary glands which are present in the mouth which secrete the saliva, the liver which produces the bile juice, and the pancreas which secrete the pancreatic juice. First, the buccal cavity. When you open your mouth, stand in front of a mirror and open your mouth, all the parts which are visible to you are the parts of the buccal cavity. Some parts are not visible to us, but we can have an idea of how many parts are present in the buccal cavity. First are the teeth. The diagram shows the types of teeth and their functions. We have canines. These are used for tearing food. Then the molars and the premolars, they are used for chewing and grinding the food. जो खाना हम मुंह में डाल के चबाते हैं, the chewing part is done through the molars and the premolars. And the incisors, the front teeth which are used for biting the food. For example, biting an apple or biting into a sandwich. So each jaw has 4 incisors, 2 canines, 4 premolars and 6 molars. A child has 20 teeth which are called the milk teeth, and an adult has 28 teeth which are called permanent teeth. After that, 4 more molars are added to the permanent teeth after the age of 18 years. So adults have total 32 teeth. The reference is given on page 49 of the book. There you can see the diagram as well, and please make sure to read the column something more given on page 49, which talks about the milk teeth and the permanent teeth. Then next comes the tongue and its function. The diagram here shows the various taste buds present on the tongue which help us to taste the food. We can taste if the food is sweet, salty, sour or bitter. So the functions of the tongue are: it helps us to taste the food because it contains the taste buds. It mixes saliva with the food to make the food wet so that we can chew it easily and then swallow it easily. It helps in chewing the food because जो टंग है वो फूड को टीथ के अंदर रखती है, बीच में रखती है और हेल्प करती है अच्छे से फूड को च्यू करने में. It helps in swallowing the food and it also helps in speaking. When we speak, we can feel the tongue inside our mouth moves around when we form the words. Next comes pharynx. This is the simple diagram which shows the pharynx.
इट इज़ अ फनल शेप्ड पैसेज, ये एक रास्ता है जहाँ से हमारी जो फूड पाइप और विंड पाइप है वो देखी जा सकती है. नाउ इट्स फंक्शन इज इम्पॉर्टेंट. फेरिनेक्स वो पैसेज है जहाँ से हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, द फूड चैनल एंड द एयर चैनल, यानी कि फूड पाइप एंड विंड पाइप. द फूड चैनल कंटिन्यूज इन द नेक एज ईसोफेगस. फूड चैनल जो है या फूड पाइप जो है वो ईसोफेगस जो है वहाँ पे फूड कैन पास ऑन टुवर्ड्स द स्टमक. इट्स ओपनिंग इज कॉल्ड द गलेट. जो एयर चैनल है और द विंड पाइप वो होता है हमारा लैरिंक्स एंड ट्रकिया. इट्स ओपनिंग इज कॉल्ड ग्लॉटिस. नेक्स्ट इज यूवुला. इट इज द ओपनिंग ऑफ ट्रकिया इन फेरिनेक्स. ये एक मस्कुलर फ्लैप टाइप का काम करता है जो हमारे गुलेट और ग्लोटिस को कवर करेगा. इट क्लोजेस द ग्लोटिस वाइल वी स्वॉलो फूड. जब हम फूड को स्वॉलो करते हैं तो ये जो है ये एपिग्लोटिस या यूवुला ग्लोटिस को कवर कर देता है ताकि जो फूड है वो विंड पाइप में एंटर ना कर जाए. सिमिलरली जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो ये गुलेट को कवर कर देता है ताकि जो एयर है वो सीधा ट्रकिया या विंड पाइप की तरफ ही जाए, फूड पाइप में एंटर ना करे. नेक्स्ट कम्स द ईसोफेगस और द फूड पाइप. It is a 25 centimeter long muscular tube. यहाँ पे जो फूड है वो स्टमक की तरफ मूव करता है थ्रू द पेरिस्टल्टिक मूवमेंट ऑफ द मसल्स. पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या होती है या फिर पेरिस्टल्सिस क्या होता है? जो हमारे मसल की कॉन्ट्रैक्शंस हैं जो फूड को पुश करता है अलोंग द वॉल ऑफ ईसोफेगस, यानी कि जो मसल्स हैं ईसोफेगस के वो कॉन्ट्रैक्ट करते चलते हैं ताकि फूड को धीरे धीरे नीचे की तरफ पुश कर सके टुवर्ड्स द स्टमक. इन द ईसोफेगस नो डाइजेशन टेक्स प्लेस. नेक्स्ट वी कम ऑन टू द स्टमक. स्टमक एक चे शेप्ड मस्कुलर इलास्टिक बैग है जहाँ पे फूड एंटर करता है. इलास्टिक क्यों? बिकॉज जब फूड एंटर करता है स्टमक में, जब हम खाना खाते हैं उसको स्टमक पे पहुँचाते हैं तो स्टमक एक्सपैंड हो जाती है टू रिसीव ऑल दैट फूड. व्हाट द स्टमक डज इज इट हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करेगा, एंजाइम सिक्रीट करेगा फूड डाइजेस्ट करने के लिए. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस. म्यूकस क्या करता है? म्यूकस स्टमक की वॉल को एसिड से प्रोटेक्ट करता है. एसिड क्या करता है? एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि जो एंजाइम्स हैं वो फूड पे एक्ट कर सके. और गैस्ट्रिक जूसेस जो है इनके अंदर वो एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे. आफ्टर दैट द फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन. यहाँ पे हमने 3 पार्ट्स को ध्यान से देखना है. द डियोडेनम जो पहला पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, जेजुनम एंड द इलियम. डियोडेनम एक सी शेप्ड पार्ट है जिसके अंदर बाइल जूस आता है जो लिवर ने बनाया है और पैनक्रियाटिक जूस आता है जो पैनक्रियास बनाते हैं. इन जूसेस के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे. जेजुनम एक 8 फीट लॉन्ग ट्यूब है जो डियोडेनम से थोड़ी सी नैरो होती है और वो ये जो मेन हमारे न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन्स और फैट्स को डाइजेस्ट करता है, फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है. इलियम लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का. जो भी रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स हैं जो भी डाइजेस्ट नहीं हुए थे पहले वो अच्छे से यहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं, एब्सॉर्ब होते हैं. इलियम की वॉल में छोटे छोटे फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस हैं जिनको हम विली कहते हैं. ये जो विली है ये डाइजेस्टेड फूड को ब्लड की तरफ एब्सॉर्ब करवा देते हैं ताकि ब्लड उस फूड को, न्यूट्रिएंट्स को सारी बॉडी तक कैरी कर सके. नेक्स्ट कम्स द लार्ज इंटेस्टाइन.
लार्ज इंटेस्टाइन में फूड की डाइजेशन ज़्यादा खास नहीं होती है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड हमारा बचा है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है. नाउ इट हैज़ द मेंशन्ड पार्ट्स, द केकम, दोनों स्पेलिंग्स यहाँ पे मेंशन्ड है, दोनों स्पेलिंग्स यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज वट एवर स्पेलिंग इज मेंशन्ड इन द बुक. ये पुअरली डेवलप्ड होता है, नॉन फंक्शनल होता है ह्यूमंस में, यानी कि ज़्यादा काम नहीं आता ह्यूमंस में, बिल्कुल ही काम नहीं आता इन सम केसेस. इट डाइजेस्ट द सेल्यूलोज. यहाँ पे हमारा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी होता है विच डज नॉट डू एनीथिंग इन द बॉडी. ये नॉन फंक्शनल पार्ट्स हैं. नेक्स्ट कम्स द कोलोन. कोलोन एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब है जिसके कई पार्ट्स हैं जो मेंशन्ड है हेयर इन द डायग्राम. इट हैज़ असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन. यहाँ पे क्या होता है, जो फूड के अंदर वाटर और सॉल्ट्स हैं वो एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं. देन कम्स रेक्टम. जो फूड में से वाटर और सॉल्ट्स हमने एब्सॉर्ब कर लिए हैं, अब जो सॉलिड पार्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड हमारा बचा है, इट इज कॉल्ड द फीसिस. रेक्टम 6 to 8 इंचेस लॉन्ग है और वो फीसिस को थोड़ा सा बॉडी में स्टोर करके रखता है अंटिल जब तक हम उसको बॉडी से रिमूव नहीं कर देते. फीसिस आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस. इसको हमारे एनल स्फिंक्टर मसल्स गार्ड करते हैं ताकि एनस को हम कॉन्शियसली कंट्रोल कर पाएँ. So the functions of the large intestine are, it absorbs water and salts from the undigested food. ये undigested food को feces में convert कर देता है और जो ये feces है इनको body से expel किया जाता है, निकाल दिया जाता है through the anus. इस process को हम कहते हैं egestion. नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमने पहले भी डिस्कस करी हैं. द सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सलाइवा बनाते हैं. सलाइवा क्या करता है, एक तो इसमें एंजाइम है बाय द नेम ऑफ सलाइवरी एमिलेस जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है. तो बेसिकली फूड का जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. दूसरा, सलाइवा टंग को मॉइस्ट रखता है और फूड को वेट बनाता है, लुब्रिकेटेड बनाता है ताकि उसको च्यू करना और स्वॉलो करना ईजी हो जाए. लिवर बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है. लिवर डाइजेशन के लिए बॉडी में बाइल जूस बनाता है जिसको वो गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है. बाद में डाइजेशन के टाइम पे ये जो बाइल जूस है वो रिलीज कर दिया जाता है डियोडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में. लिवर में जो बाइल जूस है इसके अंदर हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. पैनक्रियास, इट प्रोड्यूसेस द पैनक्रियाटिक जूस जिसमें एंजाइम्स हैं जो शुगर्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे. दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई एडवाइज द स्टूडेंट्स टू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन और साथ में अपनी जो पेजेस हैं आपके 48 to 53, please read them thoroughly because this is an important topic and you should be well versed with it.